Hello students, this is Pratibha Singh again with you from Shivrit Singh Children Academy, and I welcome to you all in my online class. Today we will start our new chapter, chapter 8, Jalebis from our NCERT based book. It so happened. I think you will enjoy this story. So let's start the story. Open your book on page number 62. It is an autobiographical story written by Ahmed Nadeem Kashmi. So let's start the story. It happened many years ago. I was in 5th standard at government school in Kambelpur, now it called Atak. The story when author was in 5th standard, वो 5th standard में पढ़ता था in government school of Kambelpur, now it is called Atak. One day he went to school with 4 rupees in his pocket to pay the school fees and the fund. When I got there, I found that the teacher who collected fees, Master Ghulam Muhammad, was on leave, and so the fee would be collected the next day. When he reached the school, he found that his teacher, the fees, Master Ghulam Muhammad, he was absent that day, and the fees would be collected on the next day. जो फीस कलेक्ट करने वाले उसके टीचर थे वो एब्सेंट थे और वो फीस नेक्स्ट डे कलेक्ट की जाएगी. ऑल थ्रू डे द कॉइन सिंपली सेट इन माई पॉकेट, बट वंस स्कूल गेट ओवर एंड आई वॉज आउटसाइड दे बिगेन टू स्पीक. द ऑथर सेड दैट होल डे ही केप्ट हिज 4 rupees in his pocket, and when school get over, जब स्कूल ओवर हुआ, the coin began to speak. जो कॉइन्स थे वो बोलने लगे, मतलब खनखनाने लगे. All right, coins don't talk. अच्छा, आप सभी जानते हैं कि कॉइन्स तो बात नहीं करते. They jingles and go खनक खनक. वो जिंगल करते हैं मतलब आवाज़ करते हैं या खनक खनक करते हैं. But I am telling you that day they actually spoke. मगर बच्चा कह रहा है कि he telling us that day the coins actually speak. The coins actually spoke. मगर उस दिन लग रहा था कि ये actually ही बात कर रहे हैं. One coin said, "What are you thinking about?" एक coin कहता है क्या सोच रहे हो? Those fresh hot jalebis coming out of the kadao in the shop over there. वो fresh hot jalebis देखो जो कि कड़ाओ में से ताजी ताजी निकल रही हैं. They are not coming out for nothing. क्या किसी चीज़ के लिए नहीं निकल रही हैं? Jalebis are meant to be eaten and only those with money in their pocket can eat them. जलेबी तो खाने के लिए ही होती है और ये तभी खाई जा सकती है जब ये पॉकेट में जो पैसे हैं उन्हीं से ये जलेबियाँ खाई जा सकती हैं. एंड मनी इज़ नॉट फॉर नथिंग, और जो मनी है वो तो किसी चीज़ के लिए नहीं होती. मनी इज़ मीन टू स्पेंड एंड ओनली दे स्पेंड इट हु लाइक जलेबी. पैसे का मतलब खर्च करना होता है और वही खर्च करता है जो जलेबियाँ पसंद करता है. लुक हियर, you 4 rupees, I said to them, I am a good boy, don't misguide me or it won't be good for you. Then the boy said, look here, you 4 rupees, ये जो 4 रुपए हैं तुम देखो इधर, मैं एक अच्छा बच्चा हूँ and don't misguide me, और मुझे misguide मत करो. It won't be good for you. It won't be good for you. तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा. He said to his 4 rupees. वो अपने 4 रुपए से ही बोलता है.
I get so much at home that I consider even looking at something in the bazaar a sin. Sin means होता है error, पाप. तो वो 4 रुपए लेके बाजार से ऐसे निकल रहा था अपने घर की ओर, जैसे कि बाजार में कुछ भी देखना उसके लिए पाप हो. Beside you are my fees and fund money. तुम मेरी फीस और फंड के पैसे हो. If I spend you today, then how shall I show my face to Master Ghulam Muhammad in school tomorrow? अगर मैं तुम्हें आज खर्च कर दूंगा तो कल मैं कैसे मास्टर गुलाम मोहम्मद को अपना चेहरा दिखा पाऊंगा. एंड आफ्टर दैट टू अल्लाह मियाँ एट कयामत, और कयामत के दिन अल्लाह मियाँ को कैसे चेहरा दिखाऊंगा. You probably don't know it, but when Master Ghulam Muhammad gets angry and mark you stand on the bench, he simply forget to let you sit till the last ring. तुम्हें ये नहीं पता है, अभी तक शायद ये नहीं पता है कि जब मास्टर गुलाम मोहम्मद नाराज़ हो जाते हैं और बेंच पर खड़ा कर देते हैं, तो वो लास्ट वेल तक बैठाने के लिए, आपको बैठने के लिए कहना भूल जाते हैं. मीन्स जब वो पनिशमेंट, बेंच पे खड़े होने की पनिशमेंट देते हैं, तो वो लास्ट वेल तक भी आपको नीचे नहीं बैठाते हैं. वो अपने कॉइन से ही कहता है. सो इट्स बेस्ट यू स्टॉप च्यूइंग एट माई ईयर्स लाइक दिस एंड लेट मी गो होम स्ट्रेट. तो ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि मेरे कानों में इस तरीके से चबाना, मेरे कानों को इस तरीके से चबाना बंद करो और चुपचाप मुझे सीधे घर जाने दो. वो अपने कॉइन से ये बात करता है. द कॉइन डिसलाइक वॉट आइड सेड सो मच दैट ऑल ऑफ देम बिगन टू स्पीक एट सेम टाइम. मगर जो कॉइन्स थे उनको तो मेरी बात ही समझ में नहीं आई और वो सब एक ही टाइम में बात करने लगे. There was such a clamor that passerby in the bazaar stared, eyes wide with surprise at me and my pocket. इतना ज़्यादा शोर हो रहा था कि जो passerby थे, मतलब राहगीर थे बाज़ार में, वो सब मुझे देख रहे थे और मेरी पॉकेट को देख रहे थे. The coins of those days, praise thing, made so more noise too. और जो उन दिनों कॉइन्स जो था वो बहुत ही बड़ी चीज़ थी, माइजरेबल चीज़ थी, तो ये बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे, मतलब 4 रुपीज़, मतलब बहुत सारे कॉइन्स को मिला के 1 आना 2 आना, 1 पैसा 2 पैसा, 1 आना 2 आना, 4 आना, इन सब को मिला के जो 4 रुपये बने थे, तो वो बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे. फाइनली इन अ पैनिक मीन्स डर जाना. इन अ पैनिक I grabbed all 4 of them and held them tight in my fist, and then they are silent. और वो जो खनक खनक की आवाज़ हो रही थी, तो finally he grabbed all 4 rupees in his fist and then he silent. तब वो खनकना बंद हो गए. उसने अपने फिस्ट में उसे जोर से कस के पकड़ लिया अपने सारे कॉइन्स को, तो वो खनखनाना बंद हो गए. नाउ पेज नंबर 64. आफ्टर टेकिंग अ फ्यू स्टेप्स आई लूजन माई ग्रिप. इमीडिएटली द ओल्डेस्ट कॉइन सेड, हियर वी आर ट्राइंग टू टेल यू समथिंग फॉर योर ओन गुड and you try to strangle us instead. और थोड़े ही स्टेप चलने के बाद he loosened his grip, उसने अपनी पकड़ को थोड़ा ढीला किया. Then the old coin said, this is an imaginary story. वो सब जो ऑथर है वो सब अपने आप ही सोच रहा है. Then इसीलिए तो कहता है कि the old coin said, Here we are trying to tell you something for your own good. हाँ, यहाँ तो हम तुम्हारे
कुछ अच्छे के लिए कह रहे हैं, तुम्हारे अपने अच्छे के लिए कह रहे हैं, और तुम ही हमें स्ट्रेंगल मीन्स होता है टू प्रिवेंट समथिंग, स्ट्रेंगल मीन्स टू प्रिवेंट समथिंग, और तुम हमें ही रोक रहे हो। टेल मी ऑनेस्टली नाउ, डोंट यू लाइक ईट दोज हॉट जलेबीज? तुम ऑनेस्टली बताना, क्या तुम्हें वो जलेबीज, जो गर्मा गर्म जलेबीज हैं, वो खाना पसंद नहीं है? एंड देन इफ यू डू एंड अप स्पेंडिंग अस फॉर टुडे, वॉन्ट यू गेट द स्कॉलरशिप मनी टुमारो? और अगर तुमने आज ये पैसे हमें खर्च कर लिया तो क्या तुम्हें कल स्कॉलरशिप नहीं मिल जाएगी? स्वीट्स विद द फीस मनी, फीस विद द स्कॉलरशिप मनी। स्वीट खाओ फीस की मनी से और फीस भर दो स्कॉलरशिप की मनी से। एंड ऑफ द स्टोरी। और किस्सा खत्म, और कहानी खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम। दिस इज हिंदी प्रोवर्ब। What are you saying? Is it right? तुम क्या कहते हो, क्या ये सही नहीं है? I replied, but it is not that wrong either. Listen, stop blabbering and let me think. I am not a common sort of boy. तभी मैंने रिप्लाई किया कि ये रॉन्ग तो नहीं है, मगर सुनो, मुझे ब्लैबर मत करो। स्टॉप ब्लैबरिंग मीन्स स्टॉप कंफ्यूजिंग में, मतलब मुझे कंफ्यूज करना बंद करो। लेट मी थिंक, और मुझे सोचने दो। आई एम नॉट अ कॉमन सॉर्ट ऑफ बॉय, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। बट देन दीज जलेबीज आर नो कॉमन सॉर्ट ऑफ जलेबीज ईदर। ये जलेबियाँ भी कोई ऐसी वैसी जलेबियाँ नहीं हैं। दे आर क्रिस्प, फ्रेश एंड फुल ऑफ स्वीट सिरप। ये कुरकुरी हैं, फ्रेश हैं और भरी हुई हैं, चाशनी से भरी हुई है। सिरप इस चाशनी। माई माउथ वाटर्ड, मेरे मुंह में पानी आ गया। बट आई वॉज नॉट अबाउट टू बी स्वेप्ट अवे सो ईजिली, मगर मैं इतनी भावनाओं में बहने वाला नहीं था। इन स्कूल आई वॉज अमंग द मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट, और स्कूल में मैं मोस्ट प्रोमिसिंग स्टूडेंट में था, मतलब मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट में था। ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिंसियर स्टूडेंट। इन 4th स्टैंडर्ड एग्जाम्स आई हैड even won a scholarship of 4 rupees a month. He was so intelligent and he was in 4th standard. He won a scholarship of 4 rupees per month. तो उसने जीती थी स्कॉलरशिप कितने रुपए की? 4 रुपए पर मंथ की। Besides, I came from a particularly well-to-do family, belong to a famous educated family. I enjoyed considerable prestige, और इसी के कारण उसे he got respect in his school. I never once been beaten so far. मुझे एक भी बार भी नहीं पीटा गया था, मारा नहीं गया था। On the contrary, Master Ji had got me to beat the अदर बॉय, और इसके बजाय जो मास्टर जी थे मुझसे ये कहते थे, दूसरे लड़कों को पीटने के लिए कहते थे। फॉर अ चाइल्ड ऑफ सच स्टेटस स्टैंडिंग देयर इन द मिडल ऑफ बाजार ईटिंग जलेबीज, तो इस तरीके का बच्चा जो कि बाजार में खड़ा है, क्या वो जलेबी खाएगा? इट वॉज नॉट राइट, ये सही नहीं है। आई डिसाइडेड, ही डिसाइडेड, इट वॉज नॉट राइट। मैं इतना सिंसियर हूँ, मेरी फैमिली इतनी अच्छी है, मुझे स्कॉलरशिप मिली हुई है, मुझे कभी मारा नहीं जाता है, और मास्टर जी मुझे खुद कहते हैं दूसरे बच्चों की जब उन्हें याद ना हो तो पिटाई लगाने के लिए। तो इस तरीके का बच्चा क्या बाजार में जलेबी खाएगा? वो अपने आप कंसीडर करता है। आई क्लेंच द रुपए इन माई फीस्ट एंड केम होम। Clench means to close,
hold tightly. He hold tightly all 4 rupees and came home back. उसने अपने 4 रुपए पकड़े अपने पॉकेट में जोर से और वो घर वापस आ गया. The coins were so keen. Keen means clever. The coins were so clever on being spent that day. खर्च होने के लिए वो बिल्कुल ही ज़्यादा चालाक थे या बिल्कुल ही आतुर थे. They kept on their attempts at persuasion till their voice began to choke. वो खर्च होने के लिए उन्होंने सारे प्रयास किए. When I reached home and sat on bed, they began to speak. When he reached at home and sat on the bed, the coins began to speak again. और वो coins दोबारा बात करने लगे. I went inside to have lunch. They began to shrink. और जब वो लंच करने गया तो वो दोबारा से shrink करने लगे. Truly fed up, I rushed out of the house barefoot. Barefoot means नंगे पाँव. And ran towards बाजार. और इसके बाद rushed out means ran out. After being fed up. Fed up होने के बाद, ऊब जाने के बाद, ran out to the market on barefoot. नंगे पैर ही वो मार्केट की ओर दौड़ पड़ा. Terrified I was, but quickly I told the halwai to bake a whole rupee worth of jalebi. He was feeling so terrified. वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था. But in hurried, इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल लेता, he told halwai to wait वर्थ ऑफ 1 रुपीज़ जलेबीज. तो उसने 1 रुपये की, पूरी 1 रुपये की जलेबी तौलने के लिए हलवाई से कहा. He astonished looked seemed to asking where I had the handcart in which I would carry all those jalebis. His astonished look seemed to be asked where. और उसका ये डरा हुआ चेहरा ये पूछ रहा था, मतलब ये इसकी तलाश में था कि वो कहाँ बैठकर खाए. Then he had the handcart. Handcart means हाथ से चलाने वाली गाड़ी, ठेला. In which he would carry all those जलेबी, जिसमें उसने अपनी सारी जलेबी रखी. Those were inexpensive time. वो बहुत ही ज़्यादा खर्चे वाला टाइम नहीं था. 1 rupee fetched means fill या go for. 1 rupee fetched more than 20 rupees does nowadays. और उस टाइम में 1 rupees 20 rupees से भी ज़्यादा हुआ करते थे. The halwai opened up a whole newspaper and heaped a pile of jalebi on it. हलवाई ने भी एक पूरा न्यूज़पेपर खोला, पूरा अखबार खोला. एंड हीप्ड मीन्स होता है ढेर लगा देना, और उस पर जलेबियों का उसने ढेर लगा दिया. जस्ट आई वॉज गैदर्ड अप द हीप इन द डिस्टेंस आई स्पॉटेड अवर तांगा. जैसे he has collected all the heap of jalebis na, he looked at his tonga. Chacha Jan was returning from court. I clutched the jalebis on my chest and ran into a gully. चाचा जान कोर्ट से वापस आ गए थे. ही क्लच मीन्स गैदर्ड हिज ऑल जलेबी ऑन हिज चेस्ट. अपने सीने से दबा रखी थी उसने सारी जलेबियाँ. एंड रैन इनटू गली, और अपनी गली में दौड़ पड़ा. व्हेन आई रीच्ड अ सेफ कॉर्नर आई बिगन टू devour the jalebis. He reached at the safe corner. Then he started to eat hungrily all the jalebis. I ate so many jalebis that if anyone pressed my mouth a little, jalebis would
have popped up of my ear and nostrils. He ate so much jalebis. उसने इतनी ज़्यादा जलेबी खा ली थी. If anyone pressed his mouth ना, अगर कोई उसका मुंह दबाता, all the जलेबी came out from his ears and nostril. तो सारी जलेबियाँ उसकी कानों से और अपनी उसकी नाक से बाहर आ जाती. इतनी जलेबी उसने खा ली थी. Very quickly, boys from the entire neighborhood assembled in the gully. Very quickly, all the entire boys of his gullies gathered here. बहुत ही जल्दी वहाँ पे सारे लड़के इकट्ठे हो गए, सारी गली के लड़के इकट्ठे हो गए. By that time I was so pleased with my stomach full of jalebis that I got into the mood of so fun. He was so happy. He was feeling so happy to eat so much jalebi. Then he was in the mood of fun. वो बहुत ही ज़्यादा खुश था इतनी सारी जलेबियाँ खा के. इस वजह से उसका अब कुछ फन करने का और कुछ अच्छा कुछ एंजॉय करने का उसका मन हुआ. I started handing out jalebi to the children around. और फिर उसने बांटना शुरू कर दिया जलेबियाँ बच्चों में. Delighted they run off, jumping and screaming into the gullies. And for the collecting jalebi for getting the jalebis, the boys ran off, jumping and screaming. जलेबियाँ खाने के लिए, जलेबियाँ पकड़ने के लिए जब वो जलेबियाँ उछाल रहा था तो बहुत सारे बच्चे भाग रहे थे, उसके पीछे कूद रहे थे और चिल्ला भी रहे थे गली में. Soon a lot of other children appeared. और जल्दी और भी बच्चे दिखाई दिए. Probably having heard the good news from the other. शायद ये अच्छी खबर उन्हें दूसरे बच्चों से मिली हो. I dashed to the halwai and brought 1 more rupees worth of jalebi. Came back and stood on the chabutra of one of the houses, liberally distributing jalebi to the children, just like the Governor Sahib used to distribute rice to the poor and needy on Independence Day. He ran out towards the halwai again and brought 1 more rupees worth of jalebis. और एक और रुपए की जलेबी ले आया. वो भाग के एक और रुपए की जलेबी ले आया और चबूतरे पे खड़े होकर ऐसी जलेबियाँ बांटने लगा जैसे कि गवर्नर साहब इंडिपेंडेंस डे पर गरीबों को चावल बांट रहे होते हैं, वैसे वो जलेबियाँ बांटने लगा. Why now there was a huge mob means huge crowd of children around me. उसने देखा कि ह्यूज जो भीड़ है, एक बड़ी भीड़ उसके चारों तरफ है. The beggars to launch an assault. The beggars also came and to attack for जलेबी. जलेबी के लिए वो भी हमला करने लगे बच्चों पर या फिर लड़ने झगड़ने लगे बच्चों पर. If children could be elected to the assembly, my success have been assured that day. If there was assembly of the children, there was the surety to success of the boy. अगर बच्चों की कोई असेंबली होती तो उस दिन उसका सिलेक्शन पक्का था, उसका सक्सेस पक्का था. Because one little signal from my jalebi wielding hand, and the mob would have been willing to kill and get killed for me. क्योंकि उसका एक सिग्नल, जलेबी को हिलाने का एक सिग्नल ऐसा था कि जो मोब थी, जो कि क्राउड थी, वो मरने मारने के लिए तैयार थी.
I bought jalebi for the remaining 2 rupees as well and distributed them. And then he bought 2 rupees. He bought jalebi for remaining 2 rupees. और उसके बाद उसने जो बचे हुए 2 रुपए थे उसकी भी जलेबी खरीद दी. And distribute in all them, और उन्हें and distributed in all them, और उन सभी को भी उन सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. Then I washed my hand and mouth at the public tap and returned home putting on such an innocent face as if I had even seen a hint of jalebi all my life. And then he washed his mouth and hand on public tap. उसके बाद उसने पब्लिक टैप पे अपने हाथ और मुंह धोया और बिल्कुल इनोसेंट बच्चे की तरह वो घर की तरफ चला गया जैसे कि कभी अपनी लाइफ में देखी ही नहीं है. Jalebis I had gobbled up easily enough. Gobbled means eaten quickly. बहुत ही जल्दी बहुत सारी जलेबी खा ली थी उसने. But digesting them become another matter. उसने जल्दी जलेबियाँ तो इतनी सारी खा ली मगर उन्हें डाइजेस्ट करना दूसरा मैटर था. With every breath came a verb. उसकी हर एक सांस के साथ उसे ढकार आती थी. वर्ब जानते हैं, ढकार. And with every verb the danger of bringing out a jalebi or two. और हर एक ढकार के साथ, हर एक वर्ब के साथ ऐसा लगता था एक दो जलेबी बाहर आ जाएंगी. The fear was killing me. जो इसका डर था वो मुझे खाए जा रहा था. At night I had to eat my dinner as well. If I had not eaten, I would have been asked to explain why I did not want any food. और रात को मैंने अपना पूरा डिनर खाया और अगर मैं पूरा डिनर नहीं खाता तो मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता कि ये मैंने अपना डिनर आज क्यों नहीं खाया है. And if I had pretended illness, the doctor would have been summoned, and if the doctor, after feeling my pulse, had declared Munna had devoured a mound of jalebis, I would simply die. अगर मैं बीमार होने को कहता so parents send to him doctor. पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास भेज देते और डॉक्टर अगर मेरी पल्स को पकड़ता तो वो डिक्लेयर कर देता कि मुन्ना है ईटन फास्टली अ माउंट ऑफ जलेबी, मतलब जलेबियों का ढेर खाया हुआ है मुन्ना ने और इसके बाद तो मैं मर ही जाता. द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले coiled up like a jalebi suffering a stomach ache. And the result was that, और रिजल्ट ये था कि all the night he coiled up like a jalebi. पूरी रात वो जलेबी की तरह लेटा पड़ा रहा and feeling so much stomach ache, और उसे बहुत ही ज़्यादा पेट दर्द हो रहा था. Thank God I did not have to eat all 4 rupees worth of jalebi by myself. Then he thanked to God that he did not eat jalebi of all 4 rupees. उसने 4 रुपए की पूरी जलेबी नहीं खाई. Otherwise, as they say, when child speak, flowers shower from their mouth. But I would be the first child in the world with whose every word a crisp fried jalebi would come out. तो
तो जैसा कहा जाता है बच्चों के लिए, जैसा कहा जाता है कि जब बच्चे बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, मगर मैं ऐसा पहला बच्चा होता कि जो बोलता तो उसके मुंह से ताज़ी ताज़ी फ्राई करी हुई जलेबियाँ निकलती।